Hello friends, myself Navin Kumar. Welcome back to my YouTube channel of mechanics. I hope that you have enjoyed my all the videos till now which I have uploaded. I have already discussed with you what is mechanics, what is the role of mechanics, what are branches of mechanics. Then I have discussed about the force, how many types of forces have been used in the engineering mechanics. Then what are the force system, what are the characteristics of force I have discussed with you, and later on I have discussed what is reaction, what is the significance of reaction, what are conditions for reaction to occur. This I have already discussed. If you are new, please go to my previous videos and just download it, and so that you can find it link between those videos and today's videos. तो हम आज के वीडियो में शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स. आप इसमें देख सकते हैं, यू कैन सी दिस. A force R is acting at an angle theta. We just divided into components. हमने इसको components में divide किया है P और Q. So process of breaking a force into number of components. कितने भी number of components में break करने का, इसे हम कहते हैं resolution of a force. And then we have rectangular component of a force. This is just the extension, केवल extension है हमारा पहले वाले का rectangular resolution of force का. इसमें what we have done, we have taken a force है angle is theta, जो वहाँ पे देख सकते हैं आप. OX एक्सिस, Y एक्सिस. I have drawn a perpendicular from here AB. यहाँ से मैं ड्रॉ किया AC. This is the force F, which is represented by OA. Now I will make the components of this F force. कैसे बनाएंगे? यहाँ के we can see the trigonometry part. This is rectangle triangle. आप यहाँ पे देखेंगे angle theta. What is the sin theta? आप देख सकते हैं, you know very well what is sin theta. Perpendicular upon hypotenuse. This is the perpendicular. This when they have made this perpendicular here, so this length and this length will be, or you can say this equivalent force will be same. So this is Fy and this is perpendicular and hypotenuse is F. So Fy upon F. So Fy can be written as F sin theta. मतलब वर्टिकल कंपोनेंट जो हमारा हमेशा में ध्यान रखना है, अगर आप कोई भी फोर्स F आपका थीटा एंगल पे है तो वर्टिकल फोर्स विल बी ऑलवेज विल बी F sin थीटा. Then horizontal force देख सकते हैं आप ट्रिग्नोमेट्री से बेस अपॉन हाइपोटेनस, दिस विल बी cos थीटा. Fx अपॉन F मीन्स Fx इक्वल टू F cos थीटा. मतलब जब भी आप किसी फोर्स को ऑब्जर्व करेंगे कंपोनेंट थीटा में, तो आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा दैट विल बी योर F cos थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट विल बी F sin थीटा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जस्ट यू हैव टू लर्न एंड जस्ट यू हैव टू कीप इट इन द माइंड. आपको दिमाग में रखना है ताकि कैसे आपको इसको रिजॉल्व करना है, क्योंकि रिजोल्यूशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे हमेशा फोर्स आपका थीटा एंगल पे भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है. हॉरिजॉन्टल होगा तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू टेक द वैल्यूज. वर्टिकल होगा इट इज आल्सो वेरी इजी, बट इफ इट इज इंक्लाइंड एट सर्टेन एंगल्स, angle can be here like that, can be like that, can be like that, or can be like that. If your angle you have, if a force it's inclined at an angle, अगर एंगल पे हुआ, then you should know how to resolve it into components कि कैसे F cos theta और F sin theta बनता है. So this is the basic explanation. Now coming to resultant part. Resultant part में क्या है, अगर आपके पास number of forces हमारे ऐड करना है किसी भी सिस्टम पे, we are talking here कंकरेंट कोप्लानर फोर्स सिस्टम. इसमें हम कंकरेंट कोप्लानर फोर्स सिस्टम की बात कर रहे हैं. मतलब सारे के सारे फोर्सेस हमारे जो होंगे एक पॉइंट से पास करेंगे और एक प्लेन से पास करेंगे. दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द प्रीवियस वीडियोस. तो यहाँ पे क्या है कि हमें नंबर ऑफ फोर्सेस हमारे ऐड कर रहे हैं, तो उसको हम एक सिंगल फोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो दिस इज द रिजल्टेंट आर. फोर्स सिंगल फोर्स विच रिप्रेजेंट्स द गिवन फोर्स सिस्टम एंड हैविंग द सेम इफेक्ट. उन सारे फोर्सेस का जो इफेक्ट होगा और जो एक फोर्स जिसमें हमने कन्वर्ट किया है सिंगल फोर्स, उसका इफेक्ट और सारे फोर्सेस का इफेक्ट दैट both will be same. Now R can be represented by summation Fx square plus summation Fy square. This I am shown by the diagram. मैंने आपको डायग्राम से दिखाया है. आप यहाँ पे देख सकते हैं, you can see here Fx and Fy. What is Fx here? Fx is the summation of all the horizontal forces. यहाँ पे summation का साइन दिख रहे हैं. summation का साइन मतलब ये है कि मान लीजिए 5 horizontal forces ऐड कर रहे हैं हमारे, तो उन सबका summation. horizontal forces कैसे ऐड कर सकते हैं? Consider this like that or like that. ओके, तो इन सबका सम जो होगा, अभी हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन साइन कन्वेंशंस. जो हम न्यूमेरिकल करेंगे देन आई विल टेल यू व्हाट आर साइन कन्वेंशंस. ओके, सो ये जो होंगे सबका समेशन होगा समेशन Fx. सिमिलरली वर्टिकल जो फोर्स होंगे, वर्टिकल फोर्सेस कैसे हो सकते हैं हमारे? ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं. ओके, आई एम नॉट डीलिंग विद द साइन कन्वेंशन राइट नाउ. ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं. सबको ऐड करना, दैट इज गिवन बाय this is summation Fy. So this is Fy and this is summation Fx. So what will be R? R will be equal to summation Fx square plus summation Fy square. Now coming to this alpha. What is the meaning of alpha here? Alpha means this is the angle which this resultant is making with the summation Fx or summation Fy. So this is given by summation Fx upon summation. Now coming to last part, this is equilibrium. What is equilibrium?
इक्विवेलेंट हमारा क्या होता है, इक्विवेलेंट हमारा एक फोर्स होता है जिसका मैग्नीट्यूड सेम वही होगा जो रिजल्टेंट फोर्स का है। मींस यू कैन सी दिस विद एन डायग्राम। This I have already explained to you, summation Fi, this is summation Fi, this is R, this is resultant, and what will be the equivalent? The equivalent is shown by this dotted line। मतलब equivalent आपका वो फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड आपका सेम होगा रिजल्टेंट के बराबर, बट द डायरेक्शन विल बी अपोजिट। सो इट इज द फोर्स विच इज हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स बट ऑफ अपोजिट सेंस। सो दिस इज E which is shown by dotted line, and this you can see. So in today's lecture I have explained you what is the resolution of a force, and then I have discussed with you rectangular components कैसे हम बनाते हैं इसके, कैसे f sin theta f cos theta होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यही आपका मेन चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए कि कैसे हम इसको रिजॉल्व करना है। आपको ये चीज़ नहीं पता होगी, यू कैन नॉट एबल टू डू एनीथिंग, देन यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट। दिस आई हैव जस्ट गिवन यू द एग्जांपल। देन इक्विवेलेंट क्या होता है इसके अंदर मैंने आपको बताया। बाकी जब न्यूमेरिकल्स करेंगे देन आई विल फोकस हाउ वी हैव टू यूज ऑल दिस टर्म्स। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। एक चीज़ और, वन मोर थिंग, आई विल अपलोड द PDF of all the notes so that you can download it from my link, and it will be very easier for you when you take the books and solve the numericals. You have to just follow my concept ताकि आपको सब कुछ इसमें इजीली आप इसमें कर सकें। सो जिसने जो भी अभी नए सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी अभी अब जो नए ऑडियंस है, सॉरी, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आप जिसको नए नए नोटिफिकेशंस को आप इजीली देख सकें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।